السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات کیسے پائی اور کب پائی، اور ان کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون بنے۔ ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ 23 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے سربراہ بن چکے تھے، اور پورا عرب اپنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف بہت تیزی سے آ رہا تھا، اور یہ اسلامک ایمپائر ایک گلوبل پاور بن چکی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ عرب فتح کرنے کے بعد یہ خبر پوری دنیا تک پہنچی کہ عرب میں ایک نبی آیا ہے جس نے پہلی بار پورے عرب کو ایک ہی خدا کے نام پر یونائٹ کر دیا، جس کے بعد پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکشنز ہونے لگے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے دور دور سے آنے لگے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے پہلے اور آخری حج کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں انہوں نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ اس خطبے سے صرف 10 سال پہلے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 لوگ تھے، لیکن اب صرف 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ کھڑے تھے، جن میں ہر ریس، وائٹ، براؤن، بلیک، سب کھڑے تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے ریسزم کو ختم کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ کسی وائٹ کو کسی بلیک اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، اور عورتوں کے حقوق پر بھی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو باتیں کی ان میں سے کچھ آج بھی UN چارٹر کا حصہ ہے۔ اس خطبے کے آخر میں وہاں کھڑے سارے لوگوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے آخری پیغمبر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حج کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس پورے قافلے کو غدیر خم کا مشہور خطبہ دیا، جس میں ہزاروں مسلمانوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ مدینہ کا لیڈر بنا کر بھی گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی کی نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ آ کر ایک فوج رومن ایمپائر سے جنگ کے لیے دوبارہ تیار کی، تاکہ وہ جنگ مؤتہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کا بدلہ لے سکے، اور اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بنایا، کیونکہ ان کے والد زید بن حارثہ جنگ مؤتہ میں مسلمانوں کے کمانڈر تھے، اور پھر اسی جنگ میں شہید بھی ہوئے تھے۔ لیکن اچانک ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی گئی، جس کے بعد یہ فوج آگے بڑھنے سے رک گئی۔ بہت سخت بیماری کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مسلمانوں کو نماز کی امامت کراتے رہے، لیکن آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت بھی نہ کر سکے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اپنے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے، جو مسجد نبوی کے بالکل اٹیچ ایک کمرہ تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی، اور اچانک ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، جس پر مدینہ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 61 سال تھی آج کل کے کیلنڈر کے مطابق، اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق ان کی ایج 63 سال تھی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیلتی گئی، اور مدینہ کے لوگ زور زور سے رونے لگے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ جو بھی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ عرصے کے لیے گئے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے، کیونکہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل ڈیزرٹ میں 40 سال تک پھر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو چھوڑ کر 40 دن تک کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، جس کے بعد ان کی امت بنی اسرائیل نے یہ سوچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن اصل میں موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے بعد واپس آ جائیں گے، اور یہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن ہم مسلمان رومن اور پرشین ایمپائر دونوں کو فتح کریں گے، اور مسلمان دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنے گی۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ سب ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن اللہ انہی کے ہاتھوں یہ سارے علاقے فتح کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مسجد نبوی میں کھڑے رہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज दोस्त थे, वो अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनके माथे पर बोसा दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब भी तलवार लेकर खड़े थे और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में बोलने से रोक रहे थे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और कहा, उमर बैठ जा। लेकिन हजरत उमर फिर भी खड़े रहे तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे कहा कि उमर को छोड़ दो और फिर अपनी जिंदगी की सबसे अहम स्पीच शुरू की। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सबको पता था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते थे तो सबसे पहले रोने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते थे। लेकिन जिस दिन सारा मदीना जोर जोर से रो रहा था, उस दिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गम को कंट्रोल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज ये सिर्फ रोने का दिन नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने का दिन है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए और सब मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मुसलमानों, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। जिसके बाद उन्होंने कुरान की वो आयत सुनाई जो जंगे ओहद के बाद नाजिल हुई थी कि जब जंगे ओहद में मुसलमान बहुत सख्त टाइम से गुजर रहे थे, कुछ दुश्मनों ने मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। जिसके बाद जंग के दरमियान ही मुसलमानों में यह अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, क्योंकि मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। ये जंगे ओहद हिजरत के 3 साल बाद हुई थी और इन 3 सालों में भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने अटैच हो गए थे कि उनकी शहादत की खबर सुनते ही मुसलमानों का सारा हौसला टूट गया और कुछ सहाबा तो जंग के दरमियान ही बैठकर रोने लगे और मुसलमान बिल्कुल जंग छोड़ने के करीब आ गए। जिसके बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है, जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं, तो अगर मोहम्मद वफात हो जाए और या उन्हें शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे? जैसे ही अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आयत मुसलमानों के सामने तिलावत की, हजरत उमर जो बॉडी से बहुत मजबूत और ताकतवर शख्स थे, वो बिल्कुल जमीन पर गिर गए और सहाबा ने बाद में कहा कि ये ऐसे था कि जैसे हमने पहली दफा ये आयत सुनी हो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के समझाने के बाद मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। लेकिन अब जब सारे मस्जिद नबवी में मौजूद थे तो अचानक कुछ लोगों ने आके बताया कि मदीना के अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चूज करने वाले हैं। तो हजरत अबू बकर, उमर और हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधा उस मीटिंग की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि मदीना के काफी अंसार हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैत देने वाले हैं, क्योंकि साद बिन उबादा मदीना के सबसे बड़े कबीले खजरज के सरदार थे और इस इस्लामिक एम्पायर का कैपिटल मदीना था, तो इसीलिए लोग नेचुरली उन्हीं को नेक्स्ट लीडर समझ रहे थे। लेकिन अचानक हजरत अबू बकर और उमर वहां पहुंचे और वहां सारों को समझाने की कोशिश की कि ये अब वही पुरानी मदीना की छोटी सी हुकूमत नहीं रही, बल्कि ये अब पूरे अरब की हुकूमत है और अरब कुरैश के अलावा किसी को भी अपना लीडर नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरैश अरब के सबसे इंपॉर्टेंट शहर मक्का के रहने वाले लोग, जिनकी पूरा अरब बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि मक्का में अरब की सबसे होली साइट काबा है। और बहुत साल पहले अब्रहा के 60,000 के लश्कर को एक मिरेकल से हराने के बाद उनकी अरब में बहुत इज्जत बच चुकी थी और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कुरैश कबीले में से थे, विच मींस अब कुरैश ही अरब को यूनाइट रख सकता था। और वहां खड़े सारे लोगों ने इनकी बात से एग्री भी किया, जिसके बाद लोगों ने साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैत देना छोड़ दी। लेकिन ये बहस फिर भी जारी रही कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस इतनी बड़ी एम्पायर को संभालेगा। आखिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें कहा कि हमें उमर या अबू उबैदा में से एक को अपना खलीफा चूज कर लेना चाहिए। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और कहा, आपसे बेहतर इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है, और उन्हीं को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। अब तक इस महफिल में जितने भी नाम लिए गए उन सारों में से किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, वहां सारे ही इस बात पर राजी हुए और सब ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। और इस तरह कुछ ही टाइम में इस इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा मुसलमानों के दरमियान मशवरे से सेलेक्ट कर लिया गया, जबकि बाकी सारे एम्पायर्स में हमेशा बहुत खून खराबे के बाद यह फैसला होता था। और आखिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 59 ईयर्स की एज में खलीफा बने। लेकिन इस सारे मीटिंग में एक शख्सियत मौजूद नहीं थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस मीटिंग का पता चला तो उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की
इस बात पर कि ये इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की गैर मौजूदगी में क्यों कर लिया गया, जिसके कुछ अरसे बाद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने हजरत अली के पास आकर कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के बहुत कमजोर कबीले से, अगर आप कहें तो मैं उनके खिलाफ एक फौज जमा कर देता हूँ। लेकिन हजरत अली ने उनको ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे मुसलमानों के सामने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली और इसके बाद इस खिलाफत को संभालने और आगे बढ़ाने में बहुत मेन किरदार अदा करते रहे। ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल मसला है क्योंकि आज तक मुसलमानों के दो बड़े ग्रुप्स का इस पर इख्तिलाफ है। दुनिया के सारे मुसलमानों में 87% सुन्नी है जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले किसी को अपना सक्सेसर खलीफा नहीं चुना और मुसलमानों ने खुद मशवरे से फैसला करके हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा चुनकर बिल्कुल सही किया। और मुसलमानों में 13% शिया जो कहते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गदीर खुम के खुतबे में क्लियरली अपने बात नेक्स्ट खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। ये इन दोनों साइड्स के व्यूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने। खलीफा बनने के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगले ही दिन अपनी कपड़ों की दुकान पर आए तो सहाबा ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर मैं कारोबार नहीं करूंगा तो अपनी फैमिली को कैसे खिलाऊंगा। जिस पर मुसलमानों ने कहा कि हम आपकी कोई तनख्वाह सैलरी सेट कर देते हैं। जिस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा तो फिर मेरी सैलरी एक आम मजदूर के सैलरी के बराबर सेट की जाए। लेकिन साहबा ने कहा कि मजदूर की सैलरी तो बहुत कम होती है। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा तो फिर मजदूर की सैलरी को बढ़ाया जाए। और इस तरह इन प्रिंसिपल्स पर अब इस्लाम की पहली खिलाफत राशिदा शुरू हुई। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा बनते ही सबसे पहले वो फौज रवाना की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई और बाकी सारे कामों को भी उसी तरह कंटिन्यू रखा जिस तरह पहले हुआ करते थे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि अब तक मुसलमानों में बहुत सारे मुनाफिकीन शामिल थे और वो इससे पहले सिर्फ इसलिए चुप रहते थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और उन्हें जिब्राइल की तरफ से बहुत सारी बातों का पहले से पता चल जाता। लेकिन अब लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो हम ज़कात भी नहीं देंगे क्योंकि मुनाफिकों के लिए अपने माल में से पैसा देना बहुत मुश्किल काम होता है। एंड नॉट ओनली दैट, कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम कामयाबी देखकर इसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें से एक का नाम था मुसलमा कज़्ज़ाब। तो देखा आपने इस वीडियो में कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे पहले खलीफा कौन बने। आगे के लिए सब्सक्राइब करें।